शमशान के आगे से महिलाएं निकल रही हों तो परफ्यूम लगा के ना निकले, इतने बजे के बाद वहाँ से ना गुजरा जाए, क्योंकि एक एनर्जी सेक्शन है जो फीमेल्स का वीक है या किसी पर्टिकुलर इंसान का वीक है, तो आइडियली उस इंसान पे या उस जीव पे वो एनर्जी सेक्शन हावी हो जाता है। कार्मिक पैटर्न यू आर कैरिंग, उसके आपके कार्मिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको स्थिति मिली है। आप एक घर में जन्मे हैं, आपको वही घर क्यों मिला है, आपके फादर बहुत अच्छे या बहुत बुरे क्यों मिले हैं, आपको मदर बहुत अच्छी क्यों मिली है, वाई यू आर अ सिंगल चाइल्ड, वाई यू डोंट हैव ब्रदर सिस्टर, वाई यू आर नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद देम, सो इट्स ऑल रिटर्न, तो वो आपको भुगतना है। Hello and welcome to yet another episode of The Basics and Beyond. And today we have with us yet another amazing speaker. We have with us Kritika ma'am. How are you, ma'am? Very well, thank you. Thank you How for are being you? here. Firstly, इतने जाम में से ट्रैफिक में से निकल के you still you. here. So just to give a quick brief introduction to the people out there, ma'am has an experience of more than 15 years in astrology. She is a Vastu expert, numerology expert. She's also a face reader and whatnot. And we'll be listening to more of her, more of what energy is, more of types of energies, and a lot more on how you can implement the right sort of energy in your life. So starting with a very positive note, ma'am, कैसे हो आप? Very, very good, thank you. That is what जो मैंने आपसे पहले भी बात किया था कि I think energy क्या होता है उसका basic, if you can explain to our audience, and how does we implement that energy जो universe में है into our own real lives, if you can explain that as well. So, energy is a very vast, discussion, and it's a very vast area to experience it. We experience energy every day. Yeah. You as an individual carrying a energy, I am carrying a energy, right? I have my aura, you have your own aura. And for taking an example, so there's a energy in water, and 70% of our body is out of water, right? Now, how the water flows in your body, how much water your body is, containing, and what kind of a water you are taking, what shapes are water in the sense of a liquid, right? And and water in the astrology is an element of thoughts also. So you are running on the water, you're not running on the food, you're running on your thoughts, right? And that's how you're, shaping up your future. So what energy I am giving to water and what I'm taking out of water is gonna, make me or break me. If you have some, rupee note, 500 rupees, if you could give me, I can just share something immediately with you. Just a second, I'll have to get it. Okay. Yeah. So we, so 500 रुपए का नोट है और आप जब पैसा देखते हो, that's how my energy section with my money, my financials, my financial abundance, my wealth, my prosperity, when I'm welcoming that. If I'm a salary person or if I'm, आप लक्ष्मी जी को वेलकम कर रहे हो, सब कर रहे हो, but what is the first thought comes to you when you hold? So everything is on the cards today, right? Digital, we are using a lot of digital. So what is the feel you have when you touch and look at the money? This is a power, right? If you have a money, you Yes. get a lot of authority, you get a lot of power with it, right? And if you don't have, what kind of a section in the society you are with. तो कैसा आपका फील है इस पैसे को पकड़ के? आपका एनर्जी सेक्शन क्या है पैसे के साथ? इट इज़ गिविंग योर हैप्पीनेस और इट शोज़ यू लोन्स, इट शोज़ यू डेट्स, इट शोज़ यू दैट आई डोंट हैव दिस. आप क्या फील कर रहे हो वो आपका एनर्जी सेक्शन है. दिस इज़ कैरिंग अ एनर्जी, राइट? सो अब ये एनर्जी मैं अपने लाइफ में कैसे इम्बाइट करूँगी, ये एनर्जी मैं अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करूँगी, डिपेंड करेगा मेरे थॉट्स पे. ठीक है, हो सकता है टुडे इफ़ आई एम नॉट फाइनेंशियली वेरी गुड, राइट, बट आई स्टिल वेलकम इट अ वेरी nice
नोट, यू नो, और मैं उसे बहुत अच्छे से वेलकम कर रही हूँ, मैं इसे देख के खुश हो रही हूँ, इट गिव्स मी पावर, इट गिव्स मी, आई एम वेल्दी, आई एम, यू नो, super rich, I am very happy with whatever you are giving to me. If I am carrying that energy with money, it definitely gonna give me happiness. If I am carrying, मैं बहुत दुखी हूँ, यू नो, मेरे पे कर्जा है, मेरे पास तुम हो नहीं, एक सिंपल लॉजिक है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग समझा कर गए हैं कि जब आप लक्ष्मी को वेलकम करते हो तो आप लक्ष्मी जी को वेलकम करते हो, साफ़ सफाई करते हो, सब करते हो। वो साफ़ सफाई का थॉट था कि अपने दिमाग से भी साफ़ सफाई करनी है, सिर्फ घर की सफाई नहीं करनी है, अपने दिमाग को भी साफ़ करना है। एंड यू हैव टू क्रिएट दैट, यू हैव टू इवोक दैट एनर्जी, राइट? तो जिस एनर्जी को हम इवोक कर लेते हैं वो एनर्जी हमारे लिए काम कर जाती है। यूनिवर्स ओनली नोज दैट हाउ टू, यू नो, मल्टीप्लाई वट एवर योर थॉट्स आर. So if you are giving a positive thought, if you are giving a right note, if you are giving right to the society, definitely you will get it into the multiplication. हम बोलते हैं karmic theory, this is the karmic theory is. So whatever you are giving आउटसाइड, यू आर गोना गेट इट, यू नो, आपको वही वापसी में मिलने वाला है मल्टीफोल्ड होके। तो आप अगर पैसे का सेक्शन को, पैसे की एनर्जी को अच्छा करके और पॉजिटिव थॉट पे देते हो तो यू विल गेट मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप उसको नेगेटिव थॉट करके करते हो तो वो आपको तो कुछ लोगों की आदत है, सब कुछ है लाइफ में, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। यू हैव, यू नो, लिसन और यू नो, प्रॉबेबली यू हैव heard about the secret book or 369 theory or whatever maybe. तो वो क्या है, वो सब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस है। सो whatever you are thinking, it's just clearing your thoughts, it's just clearing your mind and helping you to focus on a particular energy section, and that's how your things start manifesting. There's no you know, rocket science in that actually. बट लाइक इन केस जैसे आपने बोला कि मैंने उसको पकड़ा नोट को, एंड अगर मेरे पे कोई लोन है या कोई कर्जा है तो मैं वही एनर्जी उसमें डालूंगी कि मेरे पास ये नहीं है। उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं पॉजिटिव कैसे ला सकती हूँ? सो मनी इज़ अ वन सेक्शन। सपोज देयर इज़ अ रिलेशनशिप, यू नो, एंड आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप और बार बार जाके इमोशनली अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग अ स्ट्रेंथ टू योर सेल्फ, राइट? यू आर गोइंग टू द रॉन्ग पर्सन अगेन एंड अगेन, यू आर गोइंग टू दैट पर्सन अगेन एंड अगेन, यू आर बेगिंग फॉर योर इमोशंस. So what kind of a energy at a emotional level, what kind of a energy you are carrying? Negative. Of course negative, right? So हमारे यहाँ पे energy के sections बनाए गए, you know, we have a very beautiful mythology practices, right? We have बहुत अच्छे rituals हैं कि आप इमोशनल लेवल पे बहुत सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल लेवल पे बहुत सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग्स. तो वो अगर आप करते हैं, इट विल हेल्प टू बिल्ड योर, यू नो, थॉट प्रोसेस, एंड वंस दैट थॉट प्रोसेस कीप बिल्डिंग इट, आप उसे लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे तो आपका धीरे 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 वो सेक्शन ऑफ एनर्जी काम करना बेटर हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट. एंड दैट्स हाउ रेमेडीज़ वर्क ऑल्सो, राइट? यू गेट probably a particular problem and a particular दशा or something, वो दशा चल रही है, वो ख़राब चल रही है, अच्छी चल रही है, जो भी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है. अब अगर उस ख़राब रिजल्ट मिल रहा है और आपको उसे बेटर करना है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको एक रेमेडी देते हैं, आपका वो एनर्जी सेक्शन ठीक होने लग जाता है. चाहे मंत्र से हो, चाहे यंत्र से हो, चाहे वो पूजा पाठ से हो, चाहे आपको स्तोत्र कंठस्थ कर लें, कुछ भी कर लें, वो उसको करने से आपकी वो रेमेडियल पार्ट काम करना शुरू, चाहे दान दक्षिणा से हो, कैसे भी हो, वो आपका एनर्जी सेक्शन ठीक होगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स. सो बेसिकली हमारे प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उसको करेक्ट करने के लिए इन अ सेंस हम रेमेडीज करते हैं. प्लैनेट्स की एनर्जी तो सबकी ठीक ही है, डिपेंड्स ऑन आवर कार्मिक पैटर्न. ओके, दे आर गिविंग रिजल्ट्स टू अस. सो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई प्लैनेट मिला है, किसी पर्टिकुलर हाउस में, किसी पर्टिकुलर राशि में, तो आपका कार्मिक पैटर्न है, राइट? लाइक माई एक्सपर्टीज इन पेंडिंग कर्मा. सो व्हाट एज अ प्रारब्ध यू आर कैरिंग, और क्या संचित आप कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारा रिजल्ट मिलेगा. तो पेंडिंग कर्मा का अगर हम मतलब समझें
तो वो हमारा पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. हाँ, सो पेंडिंग कर्मा इज अ लाइक व्हाट प्रारब्ध यू आर कैरिंग, व्हाट व्हाई यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर प्लैनेट. तो अगर आपको सूर्य जो है वो मतलब डेबिलेटेड स्थिति में मिला है, या फिर आपको वो दिग्बली मिला है, या आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मिला है, ठीक है, बहुत अच्छे पोजीशन पे मिला या बहुत ख़राब पोजीशन पे मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? आप क्या स्टोरी लाइन है, क्या सर्किट डेवलप हो रहा है, क्या स्टोरी लाइन है उस पूरे चार्ट की, एंड दैट्स हाउ इट होल थिंग वर्क, राइट. एंड दैट इज़ व्हाट योर एनर्जी सेक्शन ऑफ योर चार्ट. आपका एक प्लैनेट बहुत अच्छा हो सकता है, एक प्लैनेट बहुत ख़राब हो सकता है, तो वो क्या एनर्जी आपके चार्ट को दे रहा है एज एन इंडिविजुअल, व्हाट यू आर, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एरिया, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, एंड विच थिंग वर्क्स फॉर यू. सो सपोज अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी की, अगर वो सर्जन होते तो कैसे होते, राइट, या किसी भी और सेलिब्रिटी की, तो अगर वो वैसे होते तो कैसे होते. द आइडिया इज़ वॉट एवर यू आर कैरिंग इट, आप उसी को ही बेटर 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 करते रहते हैं. सो सोल इज़ हैविंग इट्स ओन जर्नी, and if you're not aligned with your soul, you're bound to get fail. Right. So you have to be aligned with your soul. So your soul and body should work as a one team. It should not be separated. The moment it gets separated, आप अंतर्द्वंद में चले जाएंगे, और जब वो होगा तो जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप किसी और के लिए क्या कर पाओगे, या अपने लिए भी क्या ही कर पाओगे. तो वो अंतर्द्वंद बंद होना चाहिए. आप एज अ सोल एंड अ बॉडी शुड बी वन, एंड देन यू विल बी एट द बेस्ट ऑफ योर लाइफ. राइट. सो जैसे आपने बोला कि हमारी सोल का एक पर्पस है, राइट, एंड पेंडिंग कर्मा से भी या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी वी गो इनटू आवर पास्ट लाइव्स एंड सी पॉसिबली कि अगर हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत गलत चल रही है, आई थिंक मैक्सिमम लोग इसीलिए करवाते हैं या जानना चाहते हैं कि अगर एक चीज़ कुछ बहुत ज़्यादा गलत चल रही है तो क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ मिल रही है, राइट. सो इज़ दिस एक्चुअली ट्रू कि हमारी पास्ट लाइफ में हमने कुछ गलत किया है से हम इस लाइफ में उस चीज़ को भुगत रहे हैं, और क्या हम जो अब गलत करेंगे हम उसे अगली लाइफ में भुगतेंगे? So there are 2-3 sections of it. One is आपके बुज़ुर्गों की कमाई हुई दौलत, आपके बुज़ुर्गों का कमाया हुआ कर्ज, आपके बुज़ुर्गों के किए हुए पाप और पुण्य, सब जाते हैं. मिनिमम 3 जनरेशन्स तक जाते ही जाते हैं. दैट इज़ द वन पीस ऑफ योर चार्ट. Secondly, whatever the pending, karmic pattern you are carrying, उसके आपके कार्मिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको स्थिति मिली है. आप एक घर में जन्मे हैं, आपको वही घर क्यों मिला है, आपके फादर बहुत अच्छे या बहुत बुरे क्यों मिले हैं, आपको मदर बहुत अच्छी क्यों मिली है, आपके वाई यू आर अ सिंगल चाइल्ड, वाई यू डोंट हैव ब्रदर सिस्टर, और इफ़ यू हैव इट, वाई यू आर नॉट have a very good relationships with them. So it's all written, it's already there, because whatever you are bringing as an energy section in this on this earth, तो वो आपको भुगतना है. And when you do a pending karma reading, of course you get to know कि क्या हुआ था, and you accept, and the moment you accept that, right, आपका जो रेमेडियल पार्ट है वो बहुत इजी हो जाता है. Correct. आप अगर इग्नोरेंस में रहेंगे तो लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट होती रहेगी. मे बी अभी दशा अच्छी चल रही है, समय अच्छा चल रहा है, तो आप इग्नोरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब समय अच्छा नहीं होगा तब कैसे रहेंगे इग्नोरेंस में, सो एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका रिग्रेट नहीं है, but accept karna, whatever good or bad, you can't change whatever has been done in the past, right? But whatever good or bad it is, you accept that and move forward. Yeah. And it will work very beautifully, it will work like, magical. The moment you accept कि ठीक है जो हुआ हुआ, but now I have to work around it. If your Chandrama is into a bad shape, आपकी मदर से आपकी नहीं बन रही है, शांति नहीं है,
देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप. वो रिश्ता वैसे ही रहने वाला है. आप ये बोलो कि मेरे ब्रदर सिस्टर के साथ तो मेरी मदर का बहुत अच्छा है, एंड यू विल गेट इनटू दैट इग्नोरेंस कि शी कांट बी डूइंग दिस. नो, कुछ तो क्या ही होगा ना. कुछ तो आप ऐसा कैरी कर ही रहे हो, और फिर आप एक्सेप्ट करो, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, देन इट विल वर्क. फॉर श्योर इट विल वर्क. व्हाई नॉट, इट विल वर्क. Right. Right, that's true. But I think this also answers कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ ग्रह नक्षत्रों से कैसे पता चल सकता है कि कि मेरी मम्मी से नहीं बनती है या समथिंग. प्रॉब्ली उसका आंसर इन पास्ट लाइफ है, प्रॉब्ली उसका आंसर इन देयर पेंडिंग कर्मा है, एज वी कैन से. हाँ, उसमें आपको आंसर आ जाता है कि आपका चार्ट के हिसाब से, आपके कुंडली के हिसाब से आप क्या कैरी कर रहे हो इन दिस बर्थ. या एंड देन यू विल गेट टू नो. आप एक नक्षत्र में आए हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आए हो, सो व्हाट एनर्जी यू आर कैरिंग एंड व्हाट यू शुड बी आइडियली डूइंग इट टू करेक्ट इट इफ इट इज रिक्वायर्ड. राइट. सो जैसे हमने बात किया कि सोल का एक पर्पस होता है, इसको ही थोड़ा अगर हम फर्दर समझें तो आई हैव ऑल्सो हर्ड कि आपकी सोल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है विच यू हैव टू फुलफिल. एंड ऐसा भी होता है कि अगर इफ़ अ बेबी लाइक डाइज जस्ट होते ही, तो प्रॉबेबली उसकी सोल की लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई है, समथिंग लाइक दैट. इज इट ट्रू? आई हैव नो आइडिया. सो आपका लाइफ और डेथ आपके हाथ में नहीं है. दैट्स ऑलरेडी रिटर्न, राइट. आपका अगर किसी का बेबी होकर ही डेथ हो गया, दैट्स अ वन piece of it. But as a parent or as a mother, what you have to go through it. Lot of people pain. हाँ, it's very painful, and definitely एक सोल का जर्नी है. इट्स नॉट करेक्ट कि बस उतना ही सोल का जर्नी था और वो ख़त्म हो गया, बट वो कामिक पैटर्न था. वो उस सोल को डेफिनेटली उस बर्थ में उतना ही समय, उतने ही श्वास लिखे थे, तो वो कंप्लीट किया उसने. उस घर के अंदर आकर उतना ही श्वास था, तो वो हुआ कंप्लीट, एंड दैट सोल हैज़ गॉन बाय. राइट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो आप किसी की लाइफ में सदैव नहीं रह सकते हैं. कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं, या कुछ हमारे खुद के रिलेशनशिप्स भी होते हैं, वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, तो उनका समय बंधा हुआ होता है. वो इंसान आपके जीवन में उतने समय तक रहेगा. इसलिए हमें सिखाया गया हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कि आपसे जो भी मिल रहा है उसे प्रेम से मिलें. आप एक थॉट प्रोसेस लेके नहीं चले. आज की डेट में कोई भी मिलना नहीं चाहता है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहता है, बट व्हेन यू आर डूइंग ऑल दैट, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ मेस फॉर योरसेल्फ. आप किसी ना किसी तरीके से अपने, अब जब आपकी कुंडली ये भी बताएगी कि आपके मामा से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, एंड देयर आर रेमेडीज व्हेन यू हैव टू गो टू योर मामाज प्लेस और मासीज प्लेस, राइट. तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है आपका इस इंसान के साथ रिश्ता कैसा है, तो कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं है. तो दैट्स बिकॉज वो प्लैनेट दिखा ही रहा है ना कि यू हैव अ प्रॉब्लम इन दैट एरिया, यू हैव टू वर्क इन दैट. अब आप कुछ तो कर कर आए हो कि वो रिश्ता काम नहीं कर रहा है. सो देयर वाज अ स्टोरी जहाँ पे मैंने उन्हें बोला कि आपके मामा जी के पास जाना है आपको. इट्स अ लास्ट वीक ओनली. आई वॉज डूइंग अ रीडिंग फॉर समबडी, और मामा प्रॉबेबली इज़ नॉट बी वेरी वेलकमिंग फॉर यू. ही सेड कि हम लोगों को 12-13 साल हो गए ना, हम वहाँ जाते हैं ना वो यहाँ आते. तो मैंने कहा जाना तो है, यू हैव टू बिल्ड दैट ब्रिज, अदरवाइज योर प्रॉब्लम विल नॉट गोना गेट सॉल्व्ड. आप करते रहो पूजाएं, बट द आइडियल वे इज दैट यू डू दिस एंड देन यू विल बी डूइंग द अदर सेक्शन ऑफ द रेमेडी. अब तो कह रहे हैं कि 3 मामा हैं और तीनों में से किसी के पास नहीं जाते. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. किसी के सिस्टर्स के साथ नहीं है, किसी के पेरेंट्स के साथ नहीं, बट वाई यू गॉट ओनली वन लाइफ, राइट. Probably to break that what happened, जिसकी वजह से हमें ये मिला है, right? Yeah. So वो आप पेंडिंग कर्मा में लिखवा कर आ रहे होते हैं, और फिर आप उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम एरिया को. अगर
वो हो रहा होता तो वो प्रॉब्लम जो है मिटिगेट हो जाती, ऐसा नहीं है नहीं आती, बट उसका जो पीस ऑफ रिजल्ट है वो शायद 10% 20% रहता, या इम्पैक्ट उतना नहीं होता. करेक्ट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. राइट. सो आई थिंक दैट जो हम रेमेडी करेंगे दैट विल प्रोबेबली हेल्प अस फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ एज वेल, कि हम उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर ऑफ लेंगे. कोर्स, यस. ऑफ कोर्स, दैट्स या. हाउ इट वर्क्स. यस. ओके. तो अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस समझें ऑफ पेंडिंग कर्मा जो आप करते हो, तो दैट बेसिकली हैपन्स कुंडली से ही, या फिर जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोसिस होता है, इधर भी कुछ होता है? सो आई डू इट बोथ Okay. वे, बट आपकी कुंडली से ही बहुत कुछ निकल कर आ जाता है. राइट. Because when you're going into the past life regression, it's a complete process for the individual also, करेक्ट. right? When that person is going, and sometimes it's very emotionally disturbing element as well, right? So that's, you have to see the strength and the baggage you are Correct. carrying. Correct. But how did you get into this field? I mean, I know that you're an IT professional. You do that as well. तो ये spiritual journey, just like you said when we had an earlier conversation, कि astrology आपको चुनती है, आप astrology को नहीं चुनते. Yeah. But what was that point in your life that you knew that you were, you had to do this? So it was like, since childhood I have a Okay. great exposure and the interest in that area. I have been restricted also not to get into this, but फिर भी एस्ट्रोलॉजी व्हेन वॉन्ट्स यू, तो अपने फ्रेंड सर्कल में, सो आई यूज टू डू पामिस्ट्री इन माई कॉलेज Okay. डेज एंड इन माई स्कूल डेज, एंड कोई आता था एंड इट वाज लाइक वेरी एफर्टलेस, राइट. तो फिर उसके बाद कोई आता था दिखाता था, मैं बोलती थी ऐसा हो जाएगा, हो गया, तो मुझे लगता था क्या ही है. सो लाइक व्हाट आई सेड दैट व्हाटएवर इज द प्रारब्ध यू आर कैरिंग, आप कुछ तो आप कैरी कर ही रहे होगे, कुछ पुण्य होगा, कुछ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, तो व्हाट यू आर कैरिंग, that's how it started. And then because of my interest area, I started reading a lot of books, and Okay. then I have taken a professional also along with my other studies. So yes, you're right, I'm an IT professional, but astrology, out of passion. Yeah. Yeah, just like you said, it's like it actually choosed you, right? Right. Great. That is great. I mean, palmistry भी add हो गया है to a lot of modalities that you do, but that's great. But I believe आपके पास ऐसे लोग आते हैं या नहीं आते हैं, I don't know, या आपका encounter होता है ऐसे लोगों के साथ जो probably नहीं believe करते इन सब में? बहुत आते हैं. हाँ. बहुत आते हैं. Okay. So how do you जो deal? टेस्ट करने आते हैं सिर्फ. हाँ हाँ. Okay. सो जो टेस्ट करने आते हैं और जिनको बैकग्राउंड पता चलता है कि एन IT प्रोफेशनल ऑल्सो, दे जस्ट वांट टू चेक इट आउट. Okay. तो जब रीडिंग हो जाती है फिर उसके बाद उनको लगता है नो, देयर इज समथिंग, There's something. देयर इज समथिंग दैट इज रनिंग द होल यूनिवर्स, सो यू Yeah. हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम. Yes. लोग आते हैं जिनका विश्वास नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देर इज़ अ वे, ऊपर वाला आपको अपने रास्ते पे लेकर आएगा. आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि नहीं था विश्वास, बिल्कुल नहीं था, या पर्टिकुलर आप एक सिचुएशन में हो और उस समय आप यकीन नहीं करना चाहते, और फिर वो घुमा के किसी ना किसी तरीके से. Yes, right. So, regarding this, you're also talking about generational curse, right? जैसे आपने बोला कि 3 generations तक हमारा जो है पुण्य कह लो या जो भी पाप भी कह लो वो चलता है. तो like, is there a pattern to break it? और like वो लिखा है तो वो होना ही है? सो जब अच्छा मिलता है तो कोई क्वेश्चन नहीं होता. Correct. Right. So again, like what we have been taught
फ्रॉम थ्रू आवर एंसेस्टर्स और थ्रू आवर लीनिएज एंड थ्रू आवर बड़े बुजुर्गों के थ्रू कि कोशिश करो कि दिन में एक अच्छा काम करो. उसका रीज़न यही था कि जब आप सत्संग में भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं तो वो यही कहते हैं. तो वो आप एकत्रित कर रहे हैं, जैसे धन एकत्रित किया जाता है, अनाज एकत्रित किया जाता है, तो उसी तरीके से वो आपके सुख का एक स्टोरेज बॉक्स है जिसे आप एकत्रित कर रहे हो. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मौका सबको मिलेगा. जब आप जनरेशन्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो आपको जाएगा ही जाएगा, राइट. और पैटर्न ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है कर्सेस का. ओके. बिकॉज समटाइम इट हैपन्स दैट यू आस्क कि आपके बड़े बुजुर्गों ने ऐसा किया होगा, तो बट यू नीड अ कंसेंट व्हेन यू आर गिविंग अ दैट काइंड ऑफ अ रेमेडी. कि अगर ऐसा हुआ है आपके फैमिली में तो यू नीड अ कंसेंट. अगर सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा देन दैट रेमेडी वोंट वर्क. करेक्ट. सो देयर आर केसेस जहाँ पे वो लोग आए और मैंने उन्हें बोला कि आपके बड़े बुजुर्ग में से किसी ने कुछ गलत किसी किया है. फीमेल के साथ कुछ ऐसा किया, तो फिर they were not getting agreed on. They were in major issues in the family, especially with their daughters. So वो agree नहीं कर रहे थे. But after 7-8 months, that person came back with his daughter. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, what you're saying was right. Because एक एज के बाद आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि आपके पेरेंट्स से क्या हुआ था. मतलब Correct. उस लेडी के दादाजी से. यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि मेरे बच्चे जो है मेरे सामने मेरे पेरेंट्स के बारे में सुने, राइट. तो वो एक होता है कि पेरेंट्स डोंट वांट टू डू इट, या वो आपके बड़े बुजुर्ग नहीं बताना चाहते. तो बट फिर वो रेमेडी वर्क नहीं करता है. एंड देन एट दैट पेस आई डोंट गिव द रेमेडी बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क. व्हाई आई वांट यू टू वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो. बट ही केम बैक एंड उसको फिर रेमेडियल पार्ट करने के after almost 1.5 years it took, but it worked out. It worked out very beautifully for them. Yeah. So I also had a question regarding कि आपने जैसे बोला कि सब कुछ लिखा हुआ है, राइट. हमारा आना हमारा जाना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर क्या ये भी लिखा हुआ है कि हम किससे मिलेंगे, और क्या ये भी लिखा हुआ है कि ये पॉडकास्ट होना था आज आपसे मिलके? Yes. हम किससे मिलेंगे. आप इंसानों की बात तो छोड़िए, एक जानवर स्ट्रीट डॉग भी आपके पास नहीं आता जब तक आपका उसको देना नहीं लिखा होगा. Okay. और कोई आ जाए तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि कोई खाली ना जाए. इसीलिए हमें सिखाया गया कि कोई अगर आपके दरवाजे पे आए तो उसे खाली ना भेजा जाए. कोई तो कार्मिक पैटर्न ब्रेक होना होता है कि वो जीव, किसी भी तरीके का जीव है ना, वो आपके पास आता है, कुछ मांगने आता है. तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी जीव आ गया कुछ मांगने, तो उसको खाली हाथ ना छोड़ा जाए. यस. This is new for me to actually hear Yes, about. I knew about people. वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आएगा, एक पर्टिकुलर समय में आएगा, वो लिखा होगा तो आएगा. Okay. वो आपका वैसा लिखा होगा तभी आएगा और आपसे वो चीज़ लेके जाएगा. सपोज यू आर सेइंग नो टू दैट पर्टिकुलर जी, या नहीं करो, तो वो जो पैटर्न ब्रेक होना था, नाउ इट विल अगेन टेक लॉट ऑफ टाइम. Yeah. आप कर सकते थे उसे ब्रेक उस टाइम पे जब वो खुद आ गया मांगने. यू आर लकी दैट यू नो दैट जीव इज कमिंग एंड आस्किंग यू. तो हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो जीव रूप में हैं हमारे आसपास. Okay. अब अगर वो आ जाए और मांग ले और हम कह दें नहीं, तो फिर यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. तो एक्चुअली वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे प्लैनेट जो भी है, जैसे माता को हम चंद्रमा मानते हैं, पिता को सूर्य मानते हैं, तो हर तरीके के जो है. ओके यही तो हमारी कुंडली में होता है. यस. That is too deep to actually register, but okay. Right. So let's come to energy and its types. हमने बात किया कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है. We were discussing about कि इसी में पैरानॉर्मल एनर्जी भी आती है. A lot of people do not believe
in paranormal things or anything like that which exists, if you can put a little light on paranormal stuff or something. Yeah. So it, this space has not created by us, right? Yes. So this space is for everyone. Yes. इसमें भूत पिशाच भी मिलेंगे, जीव जंतु भी मिलेंगे, पाताल जीव भी मिलेंगे, आकाश जीव भी मिलेंगे, और धरती में रहने वाले हम जैसे भी मिलेंगे, और बाकी जीव जंतु भी मिलेंगे. तो ऑफ कोर्स वो सेक्शन ऑफ एनर्जी भी है, पैरानॉर्मल एनर्जीज भी है, उसमें भी बहुत तरीके का सेक्शन है. Okay. राइट उसमें, एंड इट्स अ वेरी डीपर थिंग टू गेट इनटू, बट पैरानॉर्मल इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट. और वो एनर्जी सेक्शन है. हाँ, हमें अलग अलग तरीके से बताया गया, सो वी शुड नॉट बी एनकाउंटरिंग विद दोज एनर्जीज. नॉर्मल जो हम लोग हैं, अगर हम उसका विचार रखें कि कुछ चीज़ें बताई गई कि शमशान के आगे से अगर महिलाएं निकल रही हों तो परफ्यूम लगा के ना निकलें, या इतने बजे के बाद वहाँ से ना गुजरा जाए, क्योंकि एक एनर्जी सेक्शन है जो फीमेल्स का वीक है या किसी पर्टिकुलर इंसान का वीक है. तो आइडियली उस इंसान पे या उस जीव पे वो एनर्जी सेक्शन हावी हो जाता है, या नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है. सो इसीलिए अलग अलग विचार धारा बताई गई ताकि उसे नॉर्मल तरीके से लोग जो है अपने रोज़ जीवन शैली में उसका यूज़ करके एक तरीके से प्रोटेक्टेड रह सकें. पर परफ्यूम्स का क्या लॉजिक है? परफ्यूम्स से क्या दिक्कत है भूतों को? लाइक बाय ह्यूमन, लाइक बाय पिशाच. ओके ओके. राइट. एक बाल खुले होने का भी मैंने बहुत हाँ सुना जी, है. तो बाल खुले होने का भी सेम ही है, बिकॉज उनका सेक्शन ऑफ एरियाज है जहाँ से वो आपको एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे या एक्सेस करेंगे. ओके. सो इसीलिए अलग अलग विचार बताए गए कि एक था कि बाल धो के छत पे भी ना जाया जाए, या इस समय ना बाल धोए जाए, या शाम को बाल धो के बाहर ना निकला जाए. तो ये सब उसी का ही पार्ट है, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज जिनका इनकाउंटर हुआ है, जो प्रॉब्लम में रहे हैं, जो प्रॉब्लम में बहुत मेजर आए हैं, दे कैन एक्सप्लेन व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, but that's an energy section which definitely works and which reside along with us on this earth also. तो हमें आते जाते शायद हमें देखने में पता ना भी लगे, बट कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है जो किसी पे उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हो. ओके ओके. सो मतलब जितना हमने सुना था, हमने ये भी सुना था कि इनका अलग एक दुनिया होता है जहाँ पे बहुत डार्कनेस होता है. अब अगर ये यही रहते हैं तो कहाँ होता है वो दुनिया? So there are people who have experienced it. Yeah. Right, and you already know who has experienced it, right? Yeah. You have, when Yeah. we were talking last. Yeah. So they exist, they coexist. You know, Okay. we cannot throw them out. ये ऊपर वाले का है. शिवजी जी की बारात जाती है तो भूत पिशाच सब जाते हैं. ठीक है, अलग अलग रूप है ऊपर वाले के, और जिसमें वो हर तरीके के जीव को जो है सम्मिलित करते हैं. सो वी हैव टू बी इन आवर ओन स्पेस, just for the curiosity. We should not try to get into their space, otherwise True. so definitely you will get encountered with them. Okay. Right. Okay. आप अपना ऑरा को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने अपने हाथ में बांधा हुआ है, तो आप अपने ऑरा को, इसीलिए बच्चों को जो है खासकर पहनाया जाता था, कहीं बाहर भी लेके जाते थे आप तो उनको एक प्रोटेक्टिव तरीके से लेके जाया जाता है. वही एक तरीका है दैट यू शुड बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज हियर वी को एग्जिस्ट विद देम. ओके. तो मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो स्पेसिफिकली मतलब, या जिनकी कुछ ऐसी डिज़ायर है जो पूरी नहीं हुई है, दे गेट इनटू दिस. राइट. तो इसीलिए बोला गया कि आप अपनी इच्छाओं को एक तो बिल्कुल जो है कम रखें, और दूसरा जो है एक एज के बाद आपको भगवान की शरण में डेफिनेटली, अगर आप पूरे जीवन में गृहस्थी में बिजी भी रहे तो आप राम नाम का जाप करें या कोई भी जाप करें, बट करते रहें.
ताकि आपकी इच्छाएं जो है न्यूट्रल हो जाएं. बाय द टाइम यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड यू शुड बी थिंकिंग अबाउट गॉड एंड योर एनर्जी शुड बी अलाइन टू दैट एंड यू विल बी ऑन टू द हाई सेल्फ ऑफ योर सेल्फ. कि एटलीस्ट जाते जाते तो ये करें कि आप इस मोह से छूटें, इस मोह में बंधे ना रहें. तो ये एक है. डेफिनेटली अगर आपकी इच्छाएं बहुत है मरते समय भी कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, तो एक कारण ये हो सकता है आपका यहाँ पे फिर को एग्जिस्ट करने का. अकाल मृत्यु डेफिनेटली, क्योंकि अगर अकाल मृत्यु के बाद कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं घर वालों के थ्रू और आपके रिचुअल्स कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है. सबसे ज़्यादा कठिन है जिनका बर्थ होते ही जिनकी डेथ हो गई है. अगर उनकी अगर प्रॉपर रिचुअल नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली गोज़ इनटू अ डिफरेंट जोन. और अगर उस जीव की कोई साधना कर ले, उस जीव पे कोई साधना कर ले, जैसे होते हैं तंत्र विद्याओं में जो होता है, अगर उस जीव की कोई साधना कर ले, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साधना इन तंत्र. अच्छा, ऐसी साधना होती है फिर? जी, इस तरीके की साधनाएं होती हैं. जैसे शव साधना होती है, इस तरीके की साधनाएं हैं. किसी की अकाल मृत्यु हुई और उस साधना को अगर कोई करता है तो डेफिनेटली मिसयूज ऑफ अ पर्टिकुलर सोल. मिसयूज ऑफ अ पर्टिकुलर, हाँ आप कह सकते हैं. बट मतलब तांत्रिक तो ये बहुत करते हैं. आई मीन जितना अभी तक हमें सुनने में आया है, समझने में आया है, दे डू इट फॉर देयर पावर्स. सो तंत्र और मंत्र दोनों ही विद्या का पार्ट है. दोनों का एक सेक्शन है एनर्जी का अगेन, और दोनों को जो दिया गया था वो अच्छे कर्म के लिए दिया गया था. ओके. बट अगेन फॉर यू नो आप कोई आता है एक तांत्रिक के पास जाते हैं कि मुझे इनका वशीकरण हो जाए, और लोग आते हैं और ऐसे आते हैं कि आपको देख के उन्हें लगेगा कि लाइफ में सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू नीड अ पर्टिकुलर पर्सन. आप और बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जीवन में सब बढ़िया है, बट यू नीड दैट पर्टिकुलर पर्सन. अब कुछ तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन खराब है, कुछ प्रारब्ध लेकर आ रहे हैं आप, और अब आप उस एरिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. आप चले गए तांत्रिक के पास. तो जो तांत्रिक है वो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको जज नहीं कर रहे. पीपल आर नॉट जजिंग यू. Still, one should not be doing it for it's a very low purpose, right? कि आप किसी का वशीकरण करो, ज़बरदस्ती उससे रिलेशनशिप करो, और फिर जो है and that when it will backfire, आप कहीं के नहीं रहते. Right. And if you're doing something wrong, तो आपको backfire के लिए रेडी रहना ही है. ठीक है. आप सोचेंगे कि आप सब कर लेंगे और कुछ नहीं होगा, आप दान पुण्य कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है. ये खाता बड़े डिफरेंट तरीके का है. ठीक है. इसमें एसेट लाइबिलिटी वाला खाते की तरह नहीं है. बट ये तांत्रिक लोग भी किसी की साधना कर रहे हैं जी, जिससे उनको ये जो भी है, चाहे वो सोल को अपने बस में करना है या कुछ भी है. एंड if God exists, why is this thing getting successful? जो भगवान के ही भक्तों के लिए बुरा हो सकता है. So in this universe अच्छा और बुरा दोनों है, right? गीता में कहा गया कि मैं तुम्हें समझ दूंगा, उस पे रिस्पॉन्ड करने का अधिकार मानव का खुद का होगा, और जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे उससे ही आपका जीवन जो है आगे का फ्यूचर निर्माण होगा. आपका जीवन निर्माण जो है आगे का भविष्य जो है वो आपके
डिसीजंस आपके उससे, बट मैं आपको समझ दूंगा, ठीक है, तो समझ है, बट जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशंस पे या रिएक्ट करते हो सिचुएशंस पे, उसके हिसाब से आपका जो है भविष्य निर्माण करता है। अब किसी को बता दिया गया कि आपकी दशा ऐसी आने वाली है जिसमें ये होगा, तो थोड़ा सा आप टेक केयर करो, या किसी का इमोशनली डैमेज होना है उसको बताया, बट आप अटक जाते हो, नहीं हमें तो यही करना है, ऐसे ही करना है, यही होना चाहिए। आपके पास तो आया ना, नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट्स योर विल पावर हाउ यू आर डूइंग इट, राइट। तो समझ है। तो जैसे ये बैकफायर करता है, फॉर इंस्टेंस कोई इंसान गया किसी तांत्रिक के पास कि मुझे वशीकरण ही करना है, ऑब्वियसली उस इंसान पे तो बैकफायर करेगा ही करेगा, बट क्या जिसने किया, जो मीडियम बना वो तांत्रिक, उस पर भी बैकफायर करेगा? फिर भी वो दोबारा दोबारा करते हैं उस चीज़ को। सो देखिए, आप कोई एक बात समझने में शायद अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक दवाई का पता है, ठीक है, तो अगर वो दवाई बेअसर हुई या कोई न्यू डिजीज़ आया, मुझे समझने में समय लग सकता है, बट आई सर्टेनली हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। यू एज एन इंडिविजुअल जिसको कुछ नहीं पता उस बारे में, आप पे जल्दी रिएक्ट करेगा, ज़्यादा प्रभावी करेगा। तो इसी तरीके से तंत्र में अगर वो अपनी शक्तियाँ उतनी बढ़ा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेगा, बट करेगा। आप ये सोचिए कि आप कुछ भी करेंगे और ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, यू हैव अ फ्री विल टू डू एनीथिंग, इट डजंट वर्क दैट वे। एंड नॉर्मली आप अच्छे जो तंत्र विद्या के ज्ञानी हैं वो ये सब नहीं करते। जो अच्छे तंत्र विद्या के ज्ञानी हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी के हित के लिए ही इस विद्या का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और जितने भी पावरफुल लोग हैं वो यूज़ करते हैं तंत्र विद्या फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिगर थिंग्स। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारा एक्सपोजर है, करेक्ट, राइट। तो हमारे लिए कोई एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी है, हम उसी सेक्शन पे काम करते हैं। तंत्र विद्या नॉर्मली पीपल यूज़ एट द लोअर सेक्शन आउट ऑफ जेलेसी। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो जाए तो आप उसको भुगतने के लिए खुद भी तैयार रहें, बिकॉज पोर्शन ऑफ इट डेफिनेटली गोना कम बैक। यस। और जो कर रहे हैं वो छोटे लालच के लिए कर रहे हैं, और वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आपको अपना ऑरा, अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करके चलनी है, बस इतना वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। यस। अभी हमने तांत्रिक की बात करी तो आई हैड अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या ब्लैक मैजिक ट्रू है? क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है या ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं? मैं वही कह रही हूँ कि कुछ नहीं होता, काला जादू ऐसा कुछ नहीं है, इट जस्ट दैट तंत्र है। जैसे कि पाचन तंत्र है, इट्स अ सिस्टम, राइट। तो हर तरीके का तंत्र है, इट्स अ सिस्टम, ठीक है। हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है तंत्र, तो और एक यंत्र है, ठीक है। ये बोलते था कि उसने उस पर काला जादू, डेफिनेटली जो भी इस तरीके की तंत्र विद्याओं में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपके डीएनए की चीज़ें हैं, चाहे वो बाल लिया जाए, चाहे वो नाखून लिया जाए, एंड देन इट विल बी डन। तो वो उस पर्टिकुलर इंसान का डीएनए का एक कॉपी बनता है, और उस कॉपी पे वो विद्या का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता था बाल बांध के रखो, अपने बालों को कहीं इधर उधर मत फेंको, बिकॉज दैट्स योर पार्ट ऑफ योर डीएनए। नाउ कमिंग टू काला जादू, काला जादू एक बहुत ही मतलब लोअर काइंड ऑफ अ सेक्शन ऑफ थॉट है। आइडियली किसी का अहित करने के लिए किया हुआ तंत्र आज की डेट में विख्यात है काला जादू के नाम से, बट काला जादू करके विद्याओं में कुछ नहीं आ रहा था,
ओके. वो एक सेक्शन बनाया गया जब लोगों ने इसको किसी के अहित के लिए यूज़ किया, तो उसको एक कर दिया गया. वो भी इसीलिए किया गया ताकि इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि ये इस तरीके का सेक्शन है जो Right. हुआ है. जो जैसे चौराहे पे कुछ करते हैं and हाँ, all तो आप that. एक एनर्जी सेक्शन इवोक कर रहे हो किसी के लिए, Yeah. और वो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर काल में, पर्टिकुलर होरा में होगा. और डेफिनेटली चौराहे पे इसलिए रखा जाता है बिकॉज दैट गोज इनटू द 4 दिशाएं. Okay. देयर इज नो ब्लॉकेज. Right. आकाश में दिया हुआ है तो चारों दिशाओं में वो जा रहा है. Right. तो किसी भी दिशा से वो काम करेगा ही कहीं करेगा. तो करेगा. हाँ, मतलब चारों दिशाओं से जाएगा तो इट विल वर्क. Okay. दैट यू आर गिविंग अ पाथवे Right. टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी. अगर हम इसको समझना चाहें इन शॉर्ट, हमारी एनर्जी जो हम समझ रहे हैं इस समय कि जस्ट लाइक आपका जो फर्स्ट एग्जांपल ही था कि हम क्या एनर्जी किसी भी चीज़ में पुट इन कर रहे हैं, व्हाट कैन बी द राइट वेज टू यूज़ योर एनर्जी इन द राइट फॉर्म. जस्ट लाइक मैंने बोला कि अगर वो फीलिंग ही अंदर से नेगेटिव है, या मैनिफेस्टेशन की बात कर लो या हाँ. किसी भी चीज़ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो चीज़ें हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, यस. मेरे माइंड की कंडीशनिंग वैसे है, राइट. ओम नमः शिवाय, आई कैन कनेक्ट इन अ सेकेंड, राइट. ओम नमः शिवाय, ओम, यू नो, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, हनुमान, बिकॉज मेरे माइंड की कंडीशनिंग वैसे है. आप मुझे आके किसी और सेक्शन की चीज़ें समझाने लगोगे तो शायद मुझे नहीं समझ में आएगा, या मैं उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी. हाँ, आप मुझे बोलोगे कि आप जो है देवी की भक्ति करें, इस देवी की भक्ति करें, तो आई कैन स्टिल वो. और जब हम इस तरीके की रेमेडी दे रहे हैं, वी आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू इवोक दैट पर्टिकुलर एनर्जी जो आपके सोल के जर्नी को बेटर कर सके, राइट. कि आप इस पर्टिकुलर एनर्जी को इवोक करिए, दैट विल हेल्प यू टू बी ऑन टू योर हायर सेल्फ. Yes. And then you'll be able to achieve according to your chart जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आप करोगे ही करोगे. Correct. तो that's how it works. But अगर आप लगे हुए हो कुछ और करने जहाँ से आपका एनर्जी सेक्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपको कोई फील ही नहीं आ रहा है, या यू आर डूइंग इट जस्ट एज अ टिक मार्क एक्टिविटी, या आपने कहा नास्तिक लोग आते हैं, हाँ वो आते हैं, उनको बहुत समय लगता है. एक रेमेडी अगर मैं एक ऐसे इंसान को दूँ जिसका बिलीफ सिस्टम है, और एक ऐसे इंसान को दूँ जिसका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो डाउन है, तो डेफिनेटली जिसका बिलीफ सिस्टम है उसके लिए बहुत जल्दी काम करेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन दैट स्पेस, राइट. उसको जस्ट मुझे थोड़ा सा तरीका सही करना है, या कोई एक तरीके से एक डायरेक्शन देनी है, कनेक्शन बनाना है बेटर, चाहे वो यंत्र के थ्रू हो, चाहे वो मंत्र के थ्रू हो. और एक है जो बिल्कुल उस जोन में ही नहीं है, पहले तो उसे उस जोन में लेके जाना है, फिर उसके लिए बाकी चीज़ें काम करेंगे. दैट्स हाउ इट वर्क्स. आप कहो कि कोई आया बिल्कुल नास्तिक, उसे पकड़ा दिया स्टोन की भाई कर रहे हो, इट डजंट गोना वर्क दैट वे. यू हैव टू हैव अ बिलीफ सिस्टम, राइट. yes. So the energy to move into a positive direction, you have to have a belief system. Yes. Okay. And इसी में if we talk about Astro Vastu, just like we were talking before, if you can explain that concept, what exactly is it, how does it work? So Vastu is that, you know, your general thing, Okay. कि आपके घर में जो है किस तरीके के एंट्रेंस है, या कहाँ पर आपका किस डायरेक्शन में आपके बेडरूम्स है, या आपका फायर एलिमेंट कितना पॉजिटिव है, या वाटर एलिमेंट में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है. सो दैट्स पार्ट ऑफ अ वास्तु. यू नो, आपका कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, शेडो वॉल तो नहीं है, या आपके देवताज की पोजीशनिंग कैसे है, किस देवता पे क्या है, तो वो पूरा आपका वास्तु है. एस्ट्रो वास्तु इज़ अ वेरी अगेन अ डीपर लेयर ऑफ अ वास्तु ओनली, कि जब आप ये देखते हैं कि ये जो घर है वो किस पर्सन के नाम पे है, जो ग्रह उनकी कुंडली में मेलेफिक इम्पैक्ट दे रहे हैं या खराब स्थिति में है, क्या वही ग्रह घर में खराब स्थिति पे है.
और 99.9% वो मिलता ही है। 100% ऐसा होता है कि आपको वो दिख जाएगा। अगर शनि खराब है तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक दिखेगा आपको, वो पर्टिकुलर एरिया। कौन सा एरिया पर्टिकुलरली? लाइक वेस्ट जोन है Okay. जो शनि को हम बोलते हैं, शनि से प्रभावित है। Okay. तो आपने उस एरिया को ख़राब कर ही रखा होगा, और वैसे आपका एयर एलिमेंट है वहाँ पर, तो आप उसमें कुछ ऐसे कलर्स डाल दोगे। अगेन देन इट कम्स टू वास्तु कि ऐसे कलर्स डाल दोगे या ऐसे आपने कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं वहाँ पर, तो दैट पर्टिकुलर आपका शनि भी प्रॉब्लम में है, और फिर आपने ये कर दिया, और फिर उसके ऊपर आ गया आपका शनि की महादशा। आप थोड़ा सा समझा सकते हो शनि की महादशा या साढ़े साती होता क्या है? बहुत सुना है पर बेसिक नॉलेज नहीं है कि वो क्या होता है। सो शनि की साढ़े साती जो है, एक तो जो प्लैनेट्स हैं वो मेरे कुंडली में किस तरीके से बैठे हुए हैं, दैट्स अ वन पीस। Okay. और एक जो ट्रांजिट में है, एज इन कि हर प्लैनेट तो चल ही रहा है, राइट। राइट। तो लेकिन वो उस समय आज शनि किस राशि में है तो उसे ट्रांजिट बोला जाएगा। ठीक है। ठीक है, एक है राशि या घर जिसमें जो मेरे चार्ट के हिसाब से जब मैं पैदा हुई तो शनि जो है किस राशि में था वो मेरे उसमें आया। करेक्ट। आज किस राशि में जो है वो Okay. चल रहे हैं, Okay. तो वो है। अब जब भी शनि चंद्रमा के एक घर पहले ट्रांजिट में आते हैं तो उसको शनि का साढ़े साती का स्टार्टिंग बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, साढ़े साती मतलब 7.5 साल यू हैव टू गो थ्रू विद इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज शनि का पूरा जोर है। और वो चंद्रमा आपके जो नेटल चंद्रमा है उसके ऊपर से शनि का ट्रांजिट होगा, तो वो पीक होगा एंड देन दी आफ्टरवर्ड। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ शनि साढ़े साती। फेज़ 1 जहाँ पे वो चंद्रमा के पहले घर में होते हैं, फेज़ 2 विच इज़ वी कॉल एज अ पीक, जो जब वो चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, फेज़ 3 जब वो उसके बाद के घर में होते हैं, विच इज़ अ साढ़े साती ऑफ शनि। एंड एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू इट, या यू नो 2 साइकिल्स तो नॉर्मली सबको ही जाना सभी को आता है। ऑब्वियसली। आई थिंक वो प्लैनेट कभी तो घूम के आएगा ही आएगा, है ना। हाँ। सो वो है। और महादशा इज़ लाइक एनी अदर दशा। ओके। तो शनि की महादशा जुपिटर के बाद आती है, जुपिटर महादशा के बाद। सो अगेन देयर इज़ अ डेफिनेटली इट्स अ इम्पैक्ट, बट साढ़े साती इज़ अगेन अ शॉर्टर पीरियड देन दी महादशा। ओके। एंड देन देयर इज़ अ अंतरदशा। ओके। जो और हायर तो अंतरदशा जो है वो जैसे किसी का जुपिटर की महादशा चल रही है या फिर वीनस की महादशा चल रही है, तो हर प्लैनेट, वीनस इज़ अ हायर, महादशा इज़ अ हायर सर्कल, देन उसके अंदर जो प्लैनेट आएगा तो महादशा के अंदर अंतरदशा किसकी चल रही है, वो सैटर्न की हो सकती है, मून की हो सकती है उस पर्टिकुलर पीरियड में। दैट्स हाउ यू गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर राइट। सो टाइम। हर प्लैनेट का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होता है? ऑफ कोर्स। बिकॉज जितना मैंने सुना अभी तक, वीनस इज बेसिकली फॉर लग्जरी, एम आई राइट? तो अगर उसकी महादशा चल रही है तो अच्छी बात है कि लग्जरी ज़्यादा आने वाला है। अगर आपकी वीनस बुरी स्थिति में है, मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है, वो अपनी स्व राशि में नहीं है, वो अपनी शत्रु राशि में है या शत्रु को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वीनस अच्छा है तो आपको लग्जरी देगा, पैसा देगा। वीनस खराब है तो खराब रिलेशनशिप्स देगा, एक्सपीरियंसेस खराब देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एस्ट्रो वास्तु में आप बेसिकली यू हेल्प चेंज द डायरेक्शंस ऑफ दोस प्लैनेट्स इनटू द राइट पाथ। डायरेक्शंस ऑफ चेंज ऑफ प्लैनेट्स नहीं होता है, Okay. दैट हाउ यू मेक इट बेटर। ओके। डायरेक्शन चेंज कोई नहीं कर सकता, रेमेडी से भी नहीं? डायरेक्शन चेंज प्लैनेट्स की कभी नहीं होती है, इट जस्ट दैट यू मेक इट बेटर फॉर दैट इंडिविजुअल। ओके, मेक
makes sense. So हमारी energy और हमारे planets, are they related in a way or ऑफ another? कोर्स Okay. आपके चेहरे से पता लग सकता है कि आपका कौन सा प्लैनेट कैसा Okay. है. कैसे? Okay, कैसे? सो आपकी कुंडली में आपके जो कुंडली है इट्स ऑल अबाउट यू. Yeah. कि आपका फेस कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, ये कैसा होगा आपका. ये भी कुंडली में होता है? हाँ जी. आपका क्या स्थिति चल रही है अब, कि आपके दांत कब खराब होंगे, आपके Okay. आंखें कैसी कितनी सुंदर होंगी, वो सब कुंडली है. ठीक है. और उसी में से फिर जो है आपका एनर्जी सेक्शन है. ठीक है. अगर शनि बहुत प्रोमिनेंट है तो आप दिखने में कैसे होंगे, अगर शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है तो दिखने में कैसे होंगे, चंद्रमा बहुत, तो वो एनर्जी भी आप कैरी कर रहे हो. ठीक है. चंद्रमा वीक है, इमोशनल या बहुत वीक है. ठीक है. या बहुत ज़िद्दी है, तो क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन. सो दीज आर ऑल डेफिनेटली बी देयर इन द चार्ट. Right. And if we connect energy to manifestation, how does that work? Does manifestation work? It definitely works. Definitely it works. But you have to have a belief on that. Okay. आप जैसा अपना एनर्जी जोन रखना चाहेंगे उस तरीके की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अब आप बोलेंगे काम सही चलना चाहिए, रिश्ता हो ना हो, तो रिश्ता हो ना हो होके भी नहीं हो जाएगा. ठीक है. Right. तो जिस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो. but I Subconsciously you are Okay. manifesting that particular thing. yeah, but I've heard there are a lot of ways of manifestation. कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ 11/11 पे करते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ होता है. Again, that how you are conditioning yourself or your subconscious mind to do that. Okay. तो जब आप subconscious में जाकर उस चीज़, उस एनर्जी को इवोक करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोना वर्क. Right. बट आपको मेंटली उस लेवल पे जाके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट इट्स वर्किंग फॉर यू, Yeah. विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. That is difficult. दैट्स डिफ़िकल्ट. अगर आज आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सबकॉन्शियसली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि होगा, अच्छा ही होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट हमें ये सिखाया गया था पहले कि बचपन से हम सीख रहे थे कि टेंशन मत लो, सब Yeah. अच्छा ही होगा, सब अच्छा. हमारे तो जो बड़े बुजुर्गों से आया वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आई थी. वी हैव लॉस्ट आवर वेज इन द मिड वे बिकॉज वी वर सो मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. तो हमने खुद ही उन सब चीज़ों को डुबो दिया बेसिकली. That's so true. Even अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बहुत कॉमनली फॉर एवरीथिंग यू कैन फाइंड रेमेडीज नाउ, जो शायद आपको होगा भी नहीं. आई मीन इफ यू आर स्क्रोलिंग एंड यू रिलेट टू 1 पॉइंट देयर आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, आप वो चीज़ें करना चालू कर देते हो बिकॉज रेमेडीज आर सो कॉमनली अवेलेबल. क्या हर एक रेमेडी हर एक इंसान को सूट करेगी? आई डोंट थिंक ये हो सकता है. दवाई है. Yeah. अगर एक ही दवाई सबको सूट कर सकती है तो शायद कर ले, बट एक्चुअली डजंट वर्क दैट वे. रेमेडीज कैन ऑल्सो बैकफायर. तो जब आपको कोई पंडित जी रेमेडी बताते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बताते हैं, वो आपको एक नक्षत्र, एक होरा, एक काल देखकर बताते हैं इस तिथि पे करनी है. कुछ अमावस की रेमेडीज़ है, कुछ पूर्णिमा की रेमेडीज़ है, कुछ संक्रांत की रेमेडीज़ है, अलग अलग डेफिनेटली है ना. तो वो उस तिथि उस समय को देख के बताते हैं. यस. एंड जो जनरल है वो तो बिल्कुल ही जनरल है. जो जनरल है वो इसीलिए है दैट्स फॉर वेल ओवरऑल वेल बीइंग. एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर बहुत यूनिवर्स बिलीव्स कि जो जिनको मैंने सक्षम बनाया है वो उनका टेक केयर करेंगे जो दूसरों पे आश्रित हैं. जैसे कि जीव जंतु, जैसे कि कीड़े मकोड़े, पाताल के जीव, है ना. और जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेफिनेटली जिनके लिए NGOs काम कर रहे हैं. विकलांग है, ब्लाइंड स्कूल्स है, वृद्धाश्रम है, जो दूसरों पे आश्रित है. राइट. तो यूनिवर्स उसी को देगा या उसी के पास रखेगा जो अपने
धन में से या अपने जो भी चीज़ें उसके पास है वो दूसरों के लिए करता है, राइट? अगर आप उसमें इग्नोरेंट रहेंगे तो जो आपके पास है वो रहता भी नहीं है. सो यू हैव टू टेक केयर फॉर दोज हु आर आश्रित ऑन यू. और अगर आप इतने सक्षम हैं तो आपको करना भी चाहिए डेफिनेटली. आप जो भी कर सकते हैं. करेक्ट. एंड ये जनरल रेमेडी सब नहीं माननी चाहिए. सब में आपको अमावस्या का रेमेडी, अमावस्या पे दान करना ही चाहिए, पूर्णिमा पे दान करना ही चाहिए. आई थिंक ये रेमेडी से ज़्यादा ये ट्रेडिशन हो गया. ये रिचुअल्स है विच Yeah. हैज़ टू बी गिवन टू अस, बट वी आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज वी आर इन our ignorant way, and we need a logic in everything. दैट्स ट्रू. आई थिंक ये मेरी जनरेशन में ज़्यादा है. हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए. एंड या दैट्स राइट. बट बॉटम लाइन यही है कि वी शुड फर्स्ट कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर या जो हमारी पर्सनलाइज रेमेडी हमें प्रोवाइड कर सके. जी. Instead of- अदरवाइज जनरल रेमेडीज है, और जिस एनर्जी सेक्शन से आप लिंक्ड हो पाए, जिस Correct. एनर्जी सेक्शन को आप इवोक करना चाहे वो रेमेडी करिए. दैट विल वर्क वेरी ब्यूटीफुली फॉर यू. या सो कमिंग टू अनदर पार्ट जो अभी मेरे को ध्यान में आया है. यू आर ऑल्सो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, राइट? सो अगर हम बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, फॉर इंस्टेंस फॉर 1, व्हाट वुड दैट बी? 8. ओके. सूर्य एंड शनि. या सो दे डोंट वर्क टुगेदर. Okay. Which is the biggest Sakrant of the year? I have no No idea. idea. Okay. Makar Sakranti. ओके, मकर इज अ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. संक्रांति जब सूर्य ट्रांजिट करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में. तो मकर संक्रांति पे ये आपको पता है कि गंगा स्नान होता है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट संक्रांति जनवरी के टाइम पे आती है. सब लोग 14th आई थिंक. हाँ, हाँ, so ये सब लोग जाके अपने घर में अपनी बेटियों के यहाँ पर देते हैं. लोग जो है उस समय पे दान दक्षिणा करते हैं. सो टू गेट पीस सूर्य जो है, जो राजा है, वो शनि के घर जाते हैं. ओके, ये नहीं पता मुझे. हाँ, तो मकर इज अ शनि राशि एंड सूर्य जो है उस समय अपने बेटे के घर जाता है. और राजा अपने बेटे के घर जाएगा तो भी यू नो गिव अ ब्लेसिंग्स. ठीक है. तो वो सबसे बड़ी संक्रांत इसलिए मानी गई है. सूर्य और शनि की अपनी स्टोरी लाइन है विच एवरीवन नोज. तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाते एक जगह पे, बट देयर इज अ टाइम and there are very beautiful remedies which can be done on Makar Sankranti या if you have such kind of a combinations. ओके. तो उस समय पे उस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी रेमेडीज की जाती हैं. ओके. इसीलिए मैंने कहा आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो तिथि काल सब देख के आपको बताएंगे कि क्या वर्क करेगा. राइट. बट अगर आप वैसे एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से पूछेंगे तो दीज एनर्जीज डजंट, क्योंकि एक बिल्कुल हाई एनर्जी जोन है विच इज़ अ लाइट, एक डार्कनेस है. राइट. मैंने ये भी So सुना है जो- कि उनकी बनती नहीं है आपस में. आप समझिए ना, अगर एक लाइट है और एक डार्कनेस है, दे कांट को एग्जिस्ट. अगर लाइट आ गई तो डार्कनेस रहेगी नहीं, राइट? गर्मी आ गई तो ठंड नहीं चले बट पाएगी. what if there's a couple which I know, they're 1 and 8 and they're like amazing. Like, can that be an exception of such stuff? प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी होंगे. राइट. एक चीज़ से नहीं डिटरमाइन कर सकते. एक चीज़ से कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते. करेक्ट. और अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फॉर नंबर 1, व्हाट वुड दैट बी? इट्स अ सूर्य, राइट. कंप्लीट रोशनी जो जीवन दान दे रहा है. बिना सूर्य के तो पेड़ पौधे नहीं जी सकते, हम भी नहीं जी सकते, राइट? सो रोशनी है. wherever it goes it get that light, या you know, and life. तो वो काम है सूर्य का. सूर्य इज़ अ मैनेजमेंट. सूर्य इज़ एक टाइम पे आकर तो आप 2 सूर्य कभी नहीं देख सकते, राइट? राइट. इट्स ओनली अ वन सूर्य. सो जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य ही है. तो इट्स कैरिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी. दैट्स राइट. that makes sense actually, because जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ आज तक, एंड बिकॉज आई एम नंबर 1, जितने भी नंबर 1 होते हैं मेरी कभी ही नहीं बनती वहाँ पे.
there's always a rift or something that happens that makes sense. If we talk about ये energy, just like you said कि सूर्य की energy है, रोशनी होती है, but I'm sure कि अगर ये energy positively manifest ना की जाए तो इसका कुछ जिद okay जो कह दिया वही right सब है, उसके आगे कुछ नहीं है. right So one is a management and one is a leadership. So when you talk about sun, I said management, right? This has to be done. That's Right. Surya. that's right Let's do it. That is mass. okay That's mass. right. तो 1 का if we talk about a negative number that will be 8 जिससे नहीं बन सकती. Yeah. एक positive number जिससे बहुत बन सकती है. सी सूर्य अलग अलग प्लैनेट्स के साथ अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है. 2 ल्यूमिनरीज 1 and 2, सूर्य एंड चंद्रमा. वैसे सूर्य चंद्रमा की जब युति होती है हम उसे अमावस योग कहते हैं, Okay. बट 1 and 2 राजा और रानी भी हैं तो साथ में राइट ओके. अच्छा करेगा. एंड अगर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन सा नंबर नहीं चलता है 2 नंबर के साथ? 2 नंबर जो है बहुत इमोशनल नंबर है. राइट तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नंबर होगा उसके साथ नहीं चलेगी. मरकरी ओके. क्या नंबर? 5. 5 2 and 5 ओके राइट. एंड 2 की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टैंड आउट करें? वेरी इमोशनल राइट एंड जो कहते हैं ना ममता से भरे हुए, हर किसी के लिए कुछ भी करना है आउट ऑफ द वे जाके. दे डोंट थिंक फ्रॉम द ब्रेन, दे थिंक फ्रॉम द हार्ट. सो दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दे आर कैरिंग. या एंड उनकी इंट्यूशंस भी अच्छी होती हैं. हाई इंट्यूशंस होती है. यस. ओके नंबर 2 एंड नंबर 7 आर वेरी हाईली इंट्यूटिव. ओके राइट. मैं सारे नंबर नहीं पूछने वाली हूँ. आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल मोनोटोनस, बट आई एम श्योर जिन्होंने भी 1 और 2 सुना होगा, मैं तो बहुत रिलेट करी हूँ फ्रॉम द पीपल दैट आई हैव नोन. टू कम टू अ क्लोजिंग पॉइंट, आई वुड रियली लाइक यू टू अपनी तरफ से whatever you would like to tell to the audience regarding energy, regarding manifestation. सो आप बुरी एनर्जीज को आने से नहीं रोक सकते हैं, बुरा वक्त आने से आप नहीं रोक सकते हैं. right एंड वी हैव टू वेलकम दी पॉजिटिव एनर्जीज. लाइक हम लोग अपने घर में जब किसी का बर्थडे है, शादी है या किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन है, उसके प्रिपरेशन करते हैं. सो वी हैव टू डू अ कॉलिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स, राइट. correct हमें उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. किसी की शादी आप साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हो, डांस की तैयारी कर रहे हो, कपड़े ये वो सब, राइट. सो इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को हमें उस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंडसेट. वी हैव टू वेलकम दैट एनर्जी. नेगेटिव को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. आप दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दें, नेगेटिविटी आ ही जाएगी. ठीक है. पॉजिटिव को लाने के लिए दरवाजे खिड़की खोलने पड़ते हैं, सूर्य की रोशनी अंदर लानी पड़ती है. सो देयर इज़ ओनली वन लाइफ, एंड वट एवर यू हैव यू कैन गिव दैट ओनली टू अदर्स. right सो बी ऑन टू अ बेटर स्टेट. जो भी सिचुएशन में आप हैं वो एक करंट स्टेट हो सकता है, और उसको सुधारा जा सकता है अगर कोई बुरे वक्त चल रहा है. बट बी ऑन अ पॉजिटिव नोट इज़ द राइट वे टू लिव. एंड दैट्स हाउ हैज़ बिन टॉट. एंड ऊपर वाला भी तभी खुश होगा ना जब उसके बच्चे खुश रहेंगे, जब वो देखेगा कि ये जिस भी स्थिति में है आज, चलो ठीक है, खुश है, तो अब इसको और बेटर किया जाए. correct अगर किसी को आप देखोगे कि रो ही रहा है, जैसी भी स्थिति दे दो रो ही रहा है, तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता. that I think that is very positive also. I think Yeah. that जो सुन भी रहा है उसको I think इतना तो समझ में आ रहा है with the examples that you're giving कि we have to welcome positivity and we need to prepare, or say we need to prepare our mind for say Yes. to welcome it. And definitely I've learned a lot Thank you. in this conversation. मैं honestly हूँ एक a pessimistic इंसान, but I do understand when you say कि हमें अपना mindset ही लाना पड़ेगा on a positive side to change that, और कुछ नहीं कर सकता उसको change. If you want to see the magics in your life, Yeah, you have to be on a positive side of it, that's right. of life. Otherwise, तो you are gonna waste it. Correct. अगर जिंदगी वेस्ट करनी है, then you can be a pessimistic way. But अगर if you really want to see the magics of universe, Yeah, then you have to be on a positive side of life. correct. Again, thank you so much for being here. Welcome.
Thank you for the Thank right you. knowledge. Thank you. And thank you for your time. Thank you so Thanks. much.